Hello. Friends, hello. Friends, can you hear me, gang? Hello. Yeah. Okay. Friends, this is our first meeting over here for the new Rotary year, and to invoke the blessing of Ganesh ji, we are going to have a short Ganesh Vanna. I call the hands to come here and give a short Ganesh Vanna, and then after that we'll rise for the national anthem. The hands will lead us for the national anthem. Thank you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। Everybody please rise for the national anthem. Ladies, please lead us for the national anthem also. Thank you. I call the meeting to order. I express my warm welcome to all the Rotarian and hands over here. I request President nominee Abhishek to invite the speaker Dr. Mukesh Gautam to come on the dais. I request Secretary Ketan Manik to make the secretarial announcements. Good evening, friends. Welcome. Starting with beginning of July. On 2nd of July, Dr. Rajesh Tiwari celebrated his birthday. Then Rotarian Nand Kishore Rathi celebrated his birthday. And on second anniversary, on the anniversary on second, Vikas and Shruti Makhare celebrated their anniversaries. On 3rd of July, Rotarian Rajkumar Saraf celebrated his birthday. Rotarian Beena Modi celebrated her birthday. And on the same day, Rotarian Jatin and Umang Desai also celebrated their anniversary. Likewise, I was also a heavy person on that day. Thank you. And on 12th July, Dr. Ashok Gupta celebrated his birthday. We have a cake for all of them. After the meeting, we'll have the honor of cutting the cake. Pass on me. Before that, I need to make one more announcement. Pallavi Dalal, daughter of Rotarian Sanjay Dalal, is attached to Rotary Club of Mumbai, and they are doing a project Chacha Ka Chhata, where old umbrellas, raincoats and rain shelters along with plastic sheets are welcome. So if anybody would like to donate and contribute, they can reach to Rotaract Pallavi Dalal or Rotarian Sanjay Dalal. Thank you. Good evening, friends. On the 4th of July, our club hosted the district seminar on values and ethics. The keynote speaker was Mrs. J.R.O. The talk was on inspired living. Total members and hands present were 143, guests 37, visiting Rotarians 4, district officials 10, total 194. Attendance from our club was 60, which is very recommendable. Our club meetings have now gone online, thanks to Kshitij over there. All the meetings are going to be video taken and are on the YouTube. The link today for the first
meeting of seminar on JRO is now already uploaded. We have all sent you the link. You can avail the benefit of watching it entire online. The entire 120 minutes video as painstakingly taken by Shishir. Please give him applause. As per my vision, I plan to make this club going into what you call as e-club kind of a thing. More and more things will happen on the Facebook. We will go online. We'll try, and we are doing an e-roaster. So each of your mobile will have the entire roaster on it. Of course, we'll also print another one. But for all those who can go, all those who can avail of this, we will see that the facility of e-roaster is available to all, and we will be launching it on the 20th on the installation day. We have sent an e-invite for the installation event on the 20th July to all, and couriered invitation cards to all members, and those who have not received it, please do let us know. There is a special request from the MOC team to all to kindly be there on time. The fellowship is at 6:45 and the meeting called to order at 7:30. There's a great event the MOC has done for us this time, and it would be interesting if you join from the beginning. There's a skit all along. That's all I have to inform you at the moment. We are having a joint blood donation drive by 6 clubs on the 12th of July, that is tomorrow, at Churchgate Station from 10 a.m. to 6 p.m. organized through Nair Hospital Blood Bank and the Western Railway Mazdoor Sangh along with volunteers from Kundanini College of Pharmacy. Members and spouses are requested to participate and donate their blood for a good cause. 15-16th August, Peninsula is going for an annual monsoon picnic. Members are requested to enroll their names as we will be closing enrollment by the end of the month. Those who are individuals can also join. We have many requests from individual members and aunts. We can suitably club them together. Some more announcements. Past President Jay Toshtiwal has received award for appreciation from the district. Rotarian Vijay Lakhotia. Is Jay around? Yeah, please rise to be recognized. Rotarian Vijay Lakhotia, please, I saw you. Yeah, please rise to be recognized. He has got the award for the maximum membership. Rotarian Sashi Dalmia is not there. Today's the cake is sponsored by Rotarian Sashi Dalmia. Please a big hand for him. Thank you for your generosity. I wish to hand over the mic to Abhishek for further announcements. Thank you, Pankaj. Pankaj has already announced blood donation drive by 6 Rotary clubs of South Bombay on 12th of July. Now, basic statistics about Rotary: there are 12,20,115 Rotarians worldwide and 34,558 clubs divided into 538 districts in 34 zones. The Rotary covers a geographical area of 218 countries. These are the statistics as on 31st May 2013. In India, there are 3,191 Rotary clubs with 1,23,941 members. And in our district, we have 131 clubs with over 7,000 members. That's all. Thank you, Abhishek. There was a request from many members that something about Rotary should be said in every meeting, so that in general people really do not know. I also do not know many things. So there could be a small information on every meeting we'll try and give to the members. Now I won't wait between y'all and Dr. Mukesh Gautam. I ask him to make everybody laugh till they please put on your seat belts. Yeah, thank you so much, Dr. Mukesh. Satish, introduction of the speaker once, please. ऐसा छोटे बातें होते रहती है. Satish, we need the long mic. Good evening, Peninsula. Mukesh Gautam is a famous Hindi humorous poet and stand-up comedian. He has performed in very popular comedy shows like the Great Indian Laughter Challenge in Star One, Comedy Champions in Sahara TV, Raju Hajiro in NDTV Imagine, Joni Alare in GTV, Laughter Night in Star One,
वाह वाह इन सब टीवी, सबसे politically incorrect count in NDTV India, Just Laugh Baki Maaf in India TV, and many more. He is a author of many books like अपनों के बीच, साथ और शिकार, वृक्षों के हक में, ताता झाड़ in Marathi. He has performed in more than 1,000 live comedy shows and Hashya Kavi Sammelan in Indian and abroad. Mukesh Gautam is a well-known environmentalist and has planted thousands of trees in various places. He is managing editor of Pranam International, a magazine for senior citizens. Over to I'm handing over the mic to Dr. Mukesh Gautam. पंकज भाई है तो ठीक है, नहीं है तो वैसे भी काम चलाया जा सकता है। चालू है तो इसमें कर लेते हैं। चलिए कोई बात कोई चलिए, पूरा देश जुगाड़ से चल रहा है, हम भी जुगाड़ से चलते हैं। जो मिल जाए उससे काम चला लेना चाहिए। ये माई का लीजिए। कवियों से लोग बच के भागते हैं। रोटरी क्लब के लोग बड़े अच्छे लोग हैं जो कवियों को बुलाते हैं, उनको सुनते हैं, बाद में चलते हुए जेब में कुछ डालते हैं। ये मैं इसलिए बता दूं कि आपको बता दूं कि बाद में कोई बेईमानी ना करे। हालांकि मुझे ओरा जी में पूरा भरोसा है। कवियों से लोग बच के भागते हैं साहब। आप बड़े अच्छे लोग हैं जो बुलाते हैं और सुनते हैं। मैं तो बस में आ रहा था, बैठा हुआ, मैंने देखा मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। मैंने टाइम पास करने के लिए कहा, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय? वो बोले मेरा नाम हसमुखलाल है, मैं बहरा हूँ। बचते हैं लोग। आप बड़े भले आदमी हैं जो बुला लेते हैं और सुन भी लेते हैं, नहीं तो लोग बचते हैं। अच्छा, पहले मेरे को एक कवि मित्र मिले, मेरे बोले मुकेश जी मैंने अपनी कविताओं की किताब लिखी, 1 महीने के अंदर 5000 कॉपी बिक गई। मैंने कहा यार ये चमत्कार कैसे हुआ? कविताओं की किताब मैंने भी लिखी, मेरी तो 300 ही बिकी। वो बोले कुछ नहीं, मैं रोज सुबह थैले में 500 किताबें लेकर निकलता था, किसी के भी जाके घर की कॉल बेल बजाता था, जो भी बाहर निकलता था उसको बोलता था मैं कवि हूँ, मैंने ये किताब लिखी है, खरीदता है कि पूरी पढ़ के सुनाओ? तो 1 महीने में सारी बिक गई। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था साहब, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, वसीम बरेलवी, काका हाथरस, कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ गया, एक गली में 8-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, जब एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। मैं बिल्कुल साबित करूंगा साहब, एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर की क्या दुर्दशा होती है कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचा सकते हैं ना? अलावा ना, मतलब आज के दौर में ये अच्छा है कि कवि कवित्री से ही रचा रहा है, नहीं तो आजकल पता नहीं कहाँ किस-किस का किससे रिलेशन हो रहा है। कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। लोग लेके जाते पान मिठाई। अब ये कवि थे, इनके पास बाकी कुछ चीज तो होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि कवियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। मैं तो अभी आ रहा था, गेट के बाहर एक आदमी मिल गया, बोला भाई साहब 500 के छुट्टे हैं क्या? मैंने कहा छुट्टे तो नहीं है, लेकिन तूने ये पूछ कर जो इज्जत मुझे दी उसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। कवियों की स्थिति ऐसी होती है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई, फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला, दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी, और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी।
तो कवियों को सुनने वाला मिल जाए तो ये भी भूल जाते हैं कि आज सुहाग रात थी। आज तो इतने सारे लोग सुनने वाले मिल गए, तो आज तो मैं मेरा पूरा कॉन्फिडेंस आपके सामने दिखा के जाऊंगा। इतनी शांति क्यों हो गई? आप क्यों टेंशन क्यों लेते? मैंने पहले बताया टेंशन नहीं लेना चाहिए। यकीन मानिए, हंसने और हंसाने वाले लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जिस जगह जाते हैं उस जगह को स्वर्ग बना देते हैं। हम लोग आज इस जगह को घंटे आधे घंटे के स्वर्ग की बैठे देंगे। आनंद कीजिए, मस्ती कीजिए। हंसी ढूंढने के लिए आदमी को दूर नहीं जाना पड़ता, हंसी हमारे आसपास होती है, हम लोग अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाते हैं, आपको मजा आता है। मैं तो अभी VT स्टेशन पे आके उतरा, एक टैक्सी वाले को बुलाया, मैंने कहा चर्च गेट चलना है, सम्राट होटल, कितने पैसे लेगा? बोले साहब 200 रुपये। मैंने कहा 200 नहीं यार, बहुत नजदीक है, 50 रुपये दूंगा। वो बोला साहब 50 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू बैठ। हंसी हमारे आसपास होती है। मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो ठीक सुबह 9 बजे टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करता था और पूछता था टाइम क्या हुआ है। टेलीफोन ऑपरेटर बताती थी 9 बज गए। जब उसका यही कार्यक्रम साल भर चलता रहा, एक दिन टेलीफोन ऑपरेटर को गुस्सा आया। उसने कहा भले आदमी, जब तुझे ठीक 9 बजे ही टाइम पूछना है कि टाइम क्या हुआ है, तो मिल का भोंपू क्यों नहीं सुनता जो ठीक 9 बजे ही बजता है? वो बोला बहन जी टेंशन क्यों ले रही हो, मैं भोंपू वाला ही हूं। और आपसे पूछ के रोज मैं ही बजाता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपका भोंपू वाला हूं और 5, 7, 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने प्रिय लोगों को सुनेंगे जिनका भाषण आप रोज सुनते हैं। हालांकि भाषण देना बड़ा खतरनाक काम है साहब। आजकल नेता बिना मतलब के भी भाषण देते हैं। एक नेताजी ने तो एक दिन पूरे 2.5-3 घंटे लगातार भाषण दिया। मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने ऑर्गेनाइजर को पूछा, मैंने कहा यार मुझे लगता है आपके यहाँ के नेता बहुत लंबा भाषण देते हैं। वो बोले भाई साहब भाषण देने वाले नेता अभी आए कहाँ, अभी तो माइक टेस्टिंग चल रही थी। और नेताओं की स्थिति इतनी खराब है साहब, इतनी खराब कि नेताओं, मैं तो जानता हूं, एक दिन एक सड़क पे कुत्ता सोया हुआ था, कुत्ता, एक नेताजी उधर से गुजरे, नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को 1 लात जमाई। कुत्ता उठा, उसे नेताजी को देखा और फिर सो गया। मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तू फुर्सत में सोया हुआ था, तेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इस नेता ने तुझे 1 लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर दिल में बदले के भाव तो बहुत जगे, पर नेताओं के मुंह फोड़ लगे। इतने खतरनाक खतरनाक नेता हमें मिले कि सर में भेजा नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं। भेजा जे भाई, ऊपर वाले ने भेजा ही क्यों? सर में भेजा नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं। खुजली खुद को है पर जनता को नोच रहे हैं। और हाल बताऊं क्या मैं इन नेताओं का, धूल जमी है चेहरे पर और दर्पण पोंछ रहे हैं। ऐसे ऐसे नेता हमें मिले, लेकिन फिर भी जब ऐसे नेता मिलते हैं तो मेरे जैसे व्यंगकार को कुछ लाइनें मिल जाती है कहने के लिए। 2 छोटी सी व्यंग की कविताएं आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे 2 लोगों को भूख जल्दी लगी, उनका वो भी जल्दी जल्दी लेके, बस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जल्दी लेके आप आ जाइए, खाना बाद में भी है। नेता हमें इतने खतरनाक खतरनाक मिले, यकीन मानिए कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, वहां मुझे डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब आजकल यहाँ डाकू नहीं रहते? वो बोला नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह चंबल में नहीं, उनकी जगह देश की संसद में हो गई। गलती कहीं ना कहीं हमारी है, भूल कहीं ना कहीं हमारी है, चूक कहीं ना कहीं हमारी है कि हम सही समय पर गलत आदमी को चुन देते हैं। कि पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते हुए फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। पहले पुलिस से भागते हुए फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी है। हमने उनसे पूछा, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले कैसा बदलाव? जब मैं डाकू था कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम जग सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है, काम करने का तरीका बदला है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं तो कई लोग तो सुन रहे हैं, जब बोले जब खत्म हो जाएगा जब बता देना, मैं जब तक बाहर जाके आता हूँ। लेकिन आप सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं। हंसी की बात आई है, मैं पुराने ट्रैक पर लौटता हूँ। हंसना चाहिए आदमी को साहब। मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों मेरे पास आया, बोले मुकेश भाई
बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बड़े कमाल कमाल के लोगों की प्रॉब्लम होती है साहब। बोले यार बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने तो क्या हो गया यार, तू मिडिल क्लास आदमी है, मेकअप कराना बंद कर। बोला बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं होती। इतने खतरनाक खतरनाक। अच्छा कई तो बच्चे बड़े खतरनाक हो गए आजकल, बच्चे इतने। हाँ साहब, कुछ लोगों की तो बात में कल भी समझ में आएगी, क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए कुछ लोग ऐसे होते जो एक ही बार हंसते, कुछ ऐसे होते जो 3 बार हंसते। पहली बार इसलिए हंसते कि बराबर में बैठा हुआ आदमी हंस रहा है, हंस लो। दूसरी बार रास्ते में जाते हुए बात कही जात समझ में आती है जब हंसते हैं। और तीसरी बार इसलिए हंसते कि यार पहली बार अपन फोकट में ही हंसे थे। तो आप बिल्कुल आनंद के साथ रहिए साहब, मस्ती कीजिए जितनी देर में आप खींच ले। बढ़िया आदमी है ये, हंसी की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप। आइए मैं एक तो कविता आपको और छोटी छोटी सुनाता हूँ। मेरी कविता इतनी गंभीर नहीं होती जिनको सुनने के लिए आज आदमी को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। एक कवि जैसे कुछ लोग बड़ी कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा के समझ में नहीं आती सामने वाले। ऐसी भाषा जैसी एक साइकिल वाले ने साइकिल वाले की दुकान में जाके की। उसने कहा कि हे महोदय, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्रचक्र में वायु का दबाव अति अल्प हो गया है, कृपया अपने वायु ठूषण यंत्र द्वारा मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्रचक्र में कुछ वायु प्रविष्ट कराकर मुझे अनुग्रहित करेंगे। उसे इतना कहना था कि अगले पहिए में हवा भर दे। लेकिन कुछ लोग बड़ी ऐसी सी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता, आपकी समझ में आ जाए, बढ़िया बात आप तक पहुंच जाए, मैं वैसी ही बात करने का उसी में मजा आता है साहब। आइए कुछ हंसी की बात और आपसे करता हूं। एक व्यंग्य की कविता आप तक उससे पहले सुनाता हूं। अभी अभी ताजा घोटाला हुआ, कोयला घोटाला। कोयला घोटाला साहब, मैंने ये एकदम ताजी कविता है, कोयला घोटाला, क्योंकि उसके बाद कोई घोटाला अब तक हुआ नहीं, इसलिए ताजी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पंकज भाई आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि पुराने लोगों से सुना था कोयले की दलाली में हाथ काला। समझ गए ना, समझ गए। पुराने लोगों से सुना था कोयले की दलाली में हाथ काला। उम्र गुजर गई अब समझ में आया गड़बड़ झाला। उम्र गुजर गई अब समझ में आया ये गड़बड़ झाला। कैग रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा ये घोटाला नहीं महाघोटाला है। और कोयले की दलाली में सिर्फ हाथ काला नहीं, कमल भी काला है। कोयले की दलाली में सिर्फ हाथ काला नहीं, कमल भी काला है। बड़े भोले हैं अन्ना में बाबा, बड़े भोले हैं अन्ना में बाबा, जो स्विस बैंक वालों के पीछे पड़े हैं। ये जानते ही नहीं कि नोट्स तो यहाँ कोयले की खदानों में दबे पड़े हैं। ये जानते ही नहीं कि नोट्स तो यहाँ कोयले की खदानों में दबे पड़े हैं। कोयले की खदानों के असली मालिक वो आदिवासी लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, और खदानों की दलाली करने वालों के घरों में करोड़ों अरबों रुपए बरस रहे हैं। खदानों की दलाली करने वालों के घरों में करोड़ों अरबों रुपए बरस रहे हैं। फिर भी हमारे एक अनर्थ शास्त्री कहते हैं कि पैसे क्या पेड़ों पर लगते हैं। फिर भी हमारे एक अनर्थ शास्त्री कहते हैं कि पैसे क्या पेड़ों पर लगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ घोटाले की जमीन हो, उसमें भ्रष्टाचार के बीज रोपिए, सिंचाई घोटाले के पानी से उसे सींचिए, फिर देखिए हर तरफ खड़े हुए जो पेड़ लहलहाएंगे उन पर फल और फूल नहीं, सिर्फ नोट ही नोट नजर आएंगे। उन पर फल और फूल नहीं, सिर्फ नोट ही नोट नजर आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हर दिन होते इस तरह के घोटालों का बोझ आम आदमी आखिर कब तक उठाएगा। एक दिन वो क्रांति की मशाल लेकर सड़क पर उतर आएगा और इस तरह के घोटाले में शामिल हर आदमी का चेहरा काला नजर आएगा। यह आपको ताली बजानी चाहिए। आप बड़े अच्छे लोग हैं साहब, हम जगह जगह के पता नहीं कैसे कैसे सब्जेक्ट से हंसी ढूंढ के लाते हैं। पिछले दिनों मैंने शेयर बाजार से हंसी ढूंढने की कोशिश की, हालांकि कैपिटल मार्केट से मेरा कोई लेना देना नहीं है जय भाई, क्योंकि जब कैपिटल ही नहीं है तो उस मार्केट के बारे में जान के भी क्या करें। लेकिन फिर भी मैंने जानने की कोशिश की। मैंने एक दोस्त से कहने में आगे एक कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, और हंसी कैसे पैदा होती है कि कहा पत्नी से कि 100 शेयर खरीद लिए, कहा पत्नी से कि 100 शेयर खरीद लिए हैं। पत्नी बोली बांधोगे कहाँ? पत्नी बोली बांधोगे कहाँ? घर में तो ले मत आना, कहीं किचन में ही आ गए तो।
और तुम्हें छोड़ दिया, मुझे अकेली को खा गए तो। मैंने कहा देवी शेयर तो कागज का एक टुकड़ा है। वो बोली इसी बात का तो टुकड़ा है। जिस देश के इतिहास के किस्से इतने सज धज के हैं, उस देश में शेर भी कागज के हैं। बड़े अच्छे लोग हैं साहब। आइए एक आध कविता और पढ़ के मैं मेरा स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। मुझे मालूम है मैं मेरा कॉन्फिडेंस जागृत नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, टाइम बदल बैठो, चलिए ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आप जब आप बताते रहे, मुझे मालूम है आप रोटरी क्लब के लोग हैं, पूरा वसूलना जानते हो। वैसे ही थोड़ा कोई रोटरी क्लब के अध्यक्ष बन जाते हैं। रोटरी क्लब की मेंबरशिप वैसे ही थोड़ा मिलती है, पूरा वसूलोगे साहब, मुझे पता है, और होना भी चाहिए साहब। आइए, बड़े मन की कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। बड़े एक आध कविता और आपके बीच सुनाना चाहता हूँ। भिखारी एक बड़ा अजीब कैरेक्टर है साहब, बड़ा अजीब कैरेक्टर होता है भिखारी। भिखारी को माध्यम बनाकर एक कविता, एक रचना मैंने की है। आइए उससे पहले एक और कविता आपको सुना देता हूँ। क्या होता है, हम भी बहुत सारी जगह पर कविताएं सुनाने के लिए जाते हैं। कई जगह ऐसी होती है जहाँ इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं, लेकिन जब रोटरी के लोग होते हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग सामने बैठे हुए होते हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है। हम लोग जब कविता पढ़ते हैं तो कविता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं। हम आए कुछ अच्छे चुटली बात आपको सुनाए चले जाए, ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। क्योंकि मुझे याद आता है एक शेर कि ये हमने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते। हम भी जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्टिंग पार्ट हमारी परफॉर्मेंस में होता है। ये हमने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते, मगर जब कविता पढ़ते हैं तो मक्कारी नहीं करते। एक अच्छी कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यकीन मानिए मेरी आप इतनी देर की परफॉर्मेंस शायद भूल जाए, इस कविता को लेकर आप अपने साथ जाइए, जीवन में आपके काम आएगी। न कोई बड़ा होता है, न और जी कोई छोटा होता है। हर आदमी का काम उसको बड़ा कर देता है, किसी भी आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है, कौन आदमी खराब काम कर रहा है। बस कहना आपसे ये चाहता हूं कि जब आपकी कोई प्रशंसा करे, जब आपकी कोई तारीफ करे, तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो उस आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। एक अच्छी कविता आपको, एक होती है नदी, एक होता है सागर। हम दोनों को जानते हैं, नदी और सागर, नदी और समुद्र दोनों को जानते हैं। दोनों को माध्यम बनाकर 1.5 मिनट की एक कविता मैंने कहने की कोशिश की है। हास्य नहीं है, लेकिन यह कविता आपके साथ जाएगी। कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई जब किसी की प्रशंसा होती है। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, और तेजी से बहने लगी नदी। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया। मैं सागर के पास गया। मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की तो सागर खुश हुए। बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। आप जैसे सुनने वाले लोग हैं इसलिए हम हैं, नहीं तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होता। हम भी कहीं बैठ के कविता लिख रहे होते हैं। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं पर ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। कविता का अपना धर्म होता है साहब। हम लोग बिना मतलब है कि आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हो गए। आज तो अच्छा है कि आप लेके नहीं आए, नहीं तो मैं तो एक जगह ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, उधर से एक बच्चा आया, उसने इतना बड़ा पत्थर हाथ में उठाया और मेरी तरफ देखा, लगा मेरी तरफ टारगेट किया। मैंने उससे कहा बेटा अगर पसंद नहीं आ रही हो तो बैठ जाऊं। वो बोले नहीं अंकल आप तो सुनाओ, आप तो हमारे मेहमान हैं। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जो आपको बुला के लाया है। तो आप तो जानते ही कि मुझे बुला के कौन लाए हैं। मैं अपनी बात कह के
जय भाई ज्यादा खुश मत हो, थोड़े दिनों के बाद इन्हीं की मेजोरिटी होगी, हम लोग माइनॉरिटी में होंगे, हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा थोड़े दिनों के बाद, जिस गति से लोगों की हालत हो रही। आइए, आप इस चीज पे कोई ये बड़ा गंभीर विषय नहीं है। विषय ये है कि हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए, कैसे बच्चे इतने खतरनाक। मैं एक दोस्त के घर जा रहा था, दोस्त मेरा 4th फ्लोर पर रहता है। जैसे मैं 3rd फ्लोर पे गया तो एक बच्चा बार बार कॉलबेल बजाने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ नहीं जा रहा था। मैंने कहा बेटा कॉलबेल बजानी है? बोले यस अंकल। मैंने कहा मैं बजाऊं? बोले बजाओ अंकल। मैंने जैसे ही बजाई, बोले भागो, निकलेगा तो बहुत मारेगा। इतने खतरनाक बच्चे। एक बच्चे से क्लासरूम में टीचर ने कहा, मिस ने बच्चे से कहा, बोले 20 तक गिनती सुनाओ। बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। इतने खतरनाक बच्चे हो गए आजकल के, चुपचाप खड़ा रहा। टीचर फिर बोली, बोले तुम्हें बोला था 20 तक गिनती सुनाओ। बच्चा फिर चुपचाप खड़ा रहा। टीचर बोली अगर 20 तक गिनती सुनाओगे तो तुम्हें एक किस दूंगी। बच्चा बड़ा खतरनाक था साहब, किसी रोटरी क्लब के मेंबर का था। बोला टीचर अगर 100 तक सुना दूं तो? इतने खतरनाक आजकल के बच्चे। हाँ, इतना बहादुर, इतना बुद्धिमान बच्चा किसी रोटेरियन का ही हो सकता है। इतने, क्योंकि मैं जानता हूं ना, वसूल करना जानते हैं साहब। इतने खतरनाक। आइए एक कविता आपको सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है भिखारी। भिखारी के माध्यम से एक चित्र मैंने खींचने की कोशिश की है, एक पिक्चर मैंने बनाई है, भिखारी क्या होता है। कविता आप तक पहुंच जाएगी। कि मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। अब आप तो इतनी टेंशन में आ गए जैसे मैं भागना शुरू करूंगा। तो ताली वाली बजाइए ताकि मैं एक कविता सुनाऊं आपको। पिछले दिनों एक कविता मैंने कानपुर में सुनाई। जैसे ही मैंने कहा कि मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है, 2-3 लोग उठ के आए, बोले अपने मोहल्ले का पता बता के जाओ। इतने खतरनाक लोग हो गए आजकल के। अच्छा, मैं एकदम कुंवारा पोएट हूँ साहब, बिल्कुल शादी वादी नहीं कर रहा। अभी हुई मेरी, पिछले दिनों शादी हुई, मैं शादी कर ही ना रहा था। एक दोस्त मेरे घर पे हमेशा आता रहता था, मैं घर का सारा काम खुद ही करता था। बोले मुकेश भाई घर का सारा काम खुद ही करते हो, शादी कर लो। साहब लोगों की सलाह नहीं माननी चाहिए बिना मतलब की। मैंने उसके कहने में आकर शादी कर ली। वो एक दिन फिर मेरे घर आया, मैं फिर कपड़े धो रहा था। फिर बोला मुकेश भाई शादी हो गई, घर में भाभी जी आ गई, अब भी अपनी पैंट शर्ट खुद ही धो रहे हो। मैंने ज्यादा ज्ञान मत बांट, गौर से देख, साड़ी ब्लाउज है। तो शादी वादी के बाद भी आदमी की ही हालत होती है, और वो हर आदमी की एक ही हालत होती है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप तो आप अलग अलग बैठे हैं इसलिए हंस रहे हैं। तो जहाँ साथ में बैठे हैं तो मैडम ऐसे लगा कौन ही बैठती है। आप बिना मतलब हंसे, इधर उधर देख के ऐसे, इसलिए मैं जानता हूँ आप बड़े खुश हुए, बड़े मजे में हंस रहे हो। दोनों मोहल्ले अलग अलग बैठे हुए, नहीं तो हंसते नहीं लोग। देखते हैं पहले मैडम हंस रही है क्या, तो हंसो, नहीं तो चुपचाप बैठो। लेकिन नहीं। आइए एक कविता आप तक पहुंचाता हूँ। कविता का शीर्षक है भिखारी। भिखारी के माध्यम से एक चित्र मैंने खींचने की कोशिश की। हम लोग किस तरह के माहौल में जी रहे हैं, किस तरह के परिवेश में हम लोग सांस ले रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो देश की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। कि मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाद ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूँ, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैं होटल के बाद ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूँ, मैं होटल के बाद ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूँ, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैंने पूछा तो बोला अपुन क्या लगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़ा था। मैंने पूछा तो बोला अपुन क्या लगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़ा था। अरे दोस्त कुछ साल पहले की बात है, मैं भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़ा था। दोस्त कुछ साल पहले की बात है, मैं भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़ा था, और तुम मुझसे होटल में पैसा उड़ाने की बाबत प्रश्न पूछते हो। तो प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों सलीम को रेलगाड़ियों के अंदर गरीबों की सुनो वाला गाना गाना पड़ता है? क्यों इस देश के युवक को काम पाने के लिए दिन भर जूती रगड़ना पड़ता है? और इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो 2 वक्त भरपेट रोटी के लिए तरसता है। इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो 2 वक्त भरपेट रोटी के लिए भी तरसता है। इस देश का वृद्ध, इस देश का बुजुर्ग अपने बेटे को नौकरी पर जाते देखने का इंतजार जब तक करता है, जब तक उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए प्रश्न मुझसे नहीं,
प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो, पूछो उनसे प्रश्न, कैसे हो जाती थी लाल किले के अंदर घुसपैठ? कैसे हो जाती थी लाल किले के अंदर घुसपैठ? किस विभाग में नहीं है यहाँ दलालों की पैठ? प्रश्न पूछे हर दिन होते नए घोटाले का, सवाल उठाइए लालटेन के उजाले का। कैसे पा जाता था 20 करोड़ की फिरौती एक मुख्यमंत्री से चंदन तस्कर वीरप्पन, और कहां से मिल जाती है उग्रवादियों को आग उगलती हुई AK-56? कहां से मिल जाती है उग्रवादियों को आग उगलती हुई AK-56? यहाँ सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है और जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। और आज जब बड़े बड़े सत्ताधीशों से लेकर एक दफ्तर के मामूली चपरासी तक रिश्वतबाजों के हाथ बिका हुआ है, ऐसे में यह भिखारी ही है जो आज भी अपने ईमान पर टिका हुआ है। ऐसे में यह भिखारी ही है जो आज भी अपने ईमान पर टिका हुआ है। इसलिए भाई साहब हम भीख मांगते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते हम चंदा भी नहीं, हमारा कहीं कोई अवैध धंधा नहीं। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। भीख मांगने के धंधे से अपने परिवार का पेट पालते हैं। और हाँ भाई साहब, हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। हम हथियारों की दलाली नहीं खाते, हम ताबूतों की दलाली नहीं खाते, हम देश की सुरक्षा को गिरवी नहीं रखते, और हम अमेरिका में जाकर नंगे भी नहीं होते। आप जानते हैं कौन कौन होते हैं? बहुत बोलते थे उस टाइम मुलायम सिंह यादव, आजम खान, कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिला अमेरिका का। जब खुद गए, नहीं तो खुद नंगा हो जाता सारा का सारा। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलत फहमी मत रहिए। भिखारी के काम में आरक्षण नहीं है, इस धंधे में भ्रष्टाचार नहीं है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक कटोरा और एक गोली खर्चनी पड़ती है, हमें किसी को दलाली देनी नहीं पड़ती है। किसी भी सरकार के बजट का हम पर कोई प्रभाव नहीं है, शेयरों के भाव के उतार चढ़ाव से हमें कोई लगाव नहीं है। परंतु मुझे इस देश की व्यवस्था को देखकर होता बहुत गम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलत फहमी में मत रहिए, आइंदा कभी भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। साहब, भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। एक भिखारी मुझे चर्चगेट स्टेशन के बाहर मिला, बोला भाई साहब 1 रुपया दो। मैंने कहा भले आदमी तू 1 रुपया ही क्यों मांगता है? वो बोला सामने वाले का स्टैंडर्ड देख के मांगता हूँ। इतने खतरनाक भिखारी। एक भिखारी ने तो एक दिन मेरे से भीख मांगी, मैंने उसे 10 का नोट दे दिया। पंकज भाई उसने 9 रुपये वापस कर दिए। मैंने कहा रख ले यार रख ले। वो बोला नहीं भाई साहब, मैं नहीं चाहता आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाए। भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। एक भिखारी ने तो एक दिन मेरे से भीख मांगी, मैंने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया। उसने वो 1 रुपया और मुझे गौर से देखा और कहा बस 1 रुपया। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, हम 1 रुपये से ज्यादा किसी को भीख देते नहीं है। उसने वो 1 रुपया मेरे ऊपर फेंक दिया, बोला यार ले जा यार, हम भी तेरे जैसे भिखारी से भीख लेते नहीं है। भिखारियों का स्टैंडर्ड। एक भिखारी ने एक दिन भीख मांगी, बोला 10 रुपये दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। वो बोला सीधा ही बोलो, तू भी हमारे स्टाफ का आदमी है। इतने खतरनाक भिखारी। एक भिखारी ने एक दिन मेरे से भीख मांगी, बोला 10 रुपये दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। वो बोला मेरा मोबाइल नंबर लिख, जब जेब में 10 रुपये हो तो एक मिस कॉल देना, मैं लेने चला आऊंगा। इतने खतरनाक भिखारी। अच्छा हद तो तब हो गई जब एक दिन एयरपोर्ट के बाहर मल्लिका शेरावत से एक भिखारी ने भीख मांगी। मल्लिका शेरावत से भिखारी भीख नहीं मांग सकता। मल्लिका शेरावत से भिखारी ने भीख मांगी। पंकज भाई बोले बहन जी 1 रुपया दो। मल्लिका ने उसे 1000 का नोट दिया। मल्लिका का सेक्रेटरी बिगड़ गया, बोले ये क्या? उसने 1 रुपया मांगा, आपने 1000 रुपए दिए। मल्लिका बोली ज्यादा ज्ञान मत बांटो, पहली बार किसी ने बहन जी कह के कुछ मांगा है। इतने खतरनाक भिखारी। एक दिन तो एक भिखारी मेरे पास आया, बोले भाई साहब 20 रुपए तो चाय पीनी है। अबे मैंने कहा गधे चाय तो 10 रुपए की आती है। वो बोला मेरे साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी। तो मैंने कहा भिखारी हो के गर्लफ्रेंड पाल रखी है? बोले ज्यादा ज्ञान मत बांटो, उसके चक्कर में पड़ के भिखारी बनाओ। अच्छा हद तो तब हो गई जब एक परमानेंट चौक के परमानेंट भिखारी को मेरे परमानेंट दोस्त पहले 20 रुपए देते थे, फिर 10 देने लगे। एक दिन जब 5 रुपए दिए तो भिखारी ने रोक लिया।
उसने कहा यार पहले 20 देता था, फिर 10 देने लगा, अब 1 रुपया 5 रुपए दिए। दोस्त बोला पहले अकेला था 20 देता था, फिर शादी हो गई 10 दिए, अब एक बच्चा भी हुआ तो 5 रुपए दिए। भिखारी बोला यार 5 भी दे या मत दे, लेकिन तुझे मेरे पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते हो शर्म नहीं आती? इसलिए कहता हूँ भाई साहब, गलत फहमी मत रहिए, आइंदा कभी भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, परंतु कुछ चंद झूठे लोग ऐसे होते हैं जो झूठे वायदों के बदले में बहुत कुछ ले जाते हैं और पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं, पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साल वाले वो सबसे बड़े वाह वाह डॉक्टर मुकेश जी, सिर्फ लाफ बाकी माफ। थैंक यू वेरी मच। आई कॉल अपॉन अभिषेक Murarka to give the vote of thanks. We had a very entertaining session with Dr. Mukesh Gautam. He's done a lot of social work and he's doing a lot of work in promoting awareness about the status of the netas and all that by being sarcastic about them. And he has kept us in splits of laughter with his sarcasm. There's a good message also which has come. So on behalf of all the अच्छे लोग out here, I thank you very much. I'd like to add one more thing. डॉक्टर गौतम जो है पर्यावरण एनवायरमेंट उसके ऊपर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। 27,000 पौधे लगा चुके हैं अभी तक और इनका टारगेट है 1 लाख पौधे लगाना है। और मैंने इन्हें बताया कि हम रोटरी क्लब में पौधे लगाते हैं, साथ ध्यान रखिएगा। Statistics for the day: 27 members, 21 hands, 3 guests. Meeting standard.